Hello, welcome to the course on microwave engineering. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about reflex klystron. So, as we discussed, reflex klystron is low power microwave oscillator. Okay, and by use of the velocity modulation and current modulation, it produces the oscillation inside the tube. Now, in today's class, we are going to discuss about traveling wave tube, which is abbreviated as TWT. So today we will discuss about traveling wave tube, abbreviated as TWT. अब बच्चों ये traveling wave tube क्या है? So basically it is the wide band microwave amplifier. It is the wide band or broadband microwave amplifier. Wide band microwave amplifier, correct? Okay, so traveling wave tubes are broadband microwave device which used to amplify the microwave signals. And if you compare this with the klystron amplifier, then traveling wave tube does not have any cavity resonators. मतलब उनके पास ऐसी कोई बंचर केविटी या कैचर केविटी नहीं है. अगर आपको याद है तो क्लाइस्ट्रॉन में बंचर एंड कैचर केविटी रहती थी और बंचर एंड कैचर केविटी का कंसेप्ट का यूज करके वो सिग्नल को एम्पलीफाई करता था. लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा बंचर या कैचर केविटी नहीं है, मतलब केविटी रेजोनेटर्स नहीं है. एंड एम्पलीफिकेशन इज डन थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बीम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ फील्ड. मतलब एक इलेक्ट्रॉन बीम रहेगा जो इलेक्ट्रॉन गन जनरेट करेगी और जिसको हमें एम्पलीफाई करना है जो सिग्नल, उसको हम बोलेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड. और रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा इनसाइड द ट्यूब. ओके, और ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन द इलेक्ट्रॉन बीम गिव एनर्जी टू द radio frequency signal, and in this way the radio frequency signal will be amplified. So basically TWT amplifier, that is traveling wave tube amplifier, is high power high frequency amplifier that is built using traveling wave tube. उसमें एक ट्यूब होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब. ओके, सो बेसिकली ये ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है, ओके, विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल्स. ओके, and as I mentioned, RF signal is amplified by absorbing power from the beam of electrons as it goes through the tube. मतलब एक इंटरैक्शन स्पेस होगा ट्यूब के अंदर, माइक्रोवेव ट्यूब के अंदर एक इंटरैक्शन स्पेस होगा. वो इंटरैक्शन स्पेस में इलेक्ट्रॉन बीम एंड RF सिग्नल दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा और ये इंटरैक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम और जो हमारा RF सिग्नल है it will absorb power from the beam of electron. वो इलेक्ट्रॉन बीम से पावर एब्जॉर्ब करेगा and in this way the RF signal will be amplified. Okay, and traveling wave tubes usually operate from 300 megahertz to over 100 gigahertz frequency. It is wide band amplifier, so its operating frequency range is very large. Okay, and they provide power levels from few watts to megawatts with a gain of 40 to 60 dB, but it provides the high power. It provides high power. So we can say that traveling wave tubes are high power and wide band amplifier. So if you look at the construction of this tube, so figure shows the traveling wave tube construction. So basically it is tube in the form of tube. आप देख सकते हो, which is the cylindrical structure और उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन है. So this is the electron gun assembly. Okay, and which emits the beam of electron. यहाँ से beam of electron emit होगा, बराबर है. It has also anode plates. Okay, it has helix structure. We will discuss what is the importance of this helix structure. उसमें helix structure है जो ये मतलब helical देख रहा है आपको वायर, उसको हम बोलते हैं helix structure. And collector will collect the electron beam which is emitted by electron gun. और ये जो helix structure है मतलब दिस द इंटरैक्शन स्पेस. ये ट्रैवलिंग ट्यूब में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम एंड जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसके बीच में इंटरैक्शन होगा और यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसको हमें एम्पलीफाई करना है उसको हम एज अ इनपुट देंगे और एम्पलीफाइड आउटपुट यहाँ से हम लेंगे. देयर इज ऑल्सो यू कैन सी देयर इज एटेन्यूएटर. ये डॉट डॉट जो दिख रहा है दैट इज बेसिकली एटेन्यूएटर.
and what is the role of attenuator that we will discuss. Okay, so simple construction है, आप देख सकते हो. It is a cylindrical traveling tube which contain electron gun at the left side which emit the beam of electron. At the right hand side there is a collector which collect the beam of electron, and in the traveling wave tube there is a helix structure which help us for interaction between the electron beam and RF input signal. An amplified signal is taken from this point. Okay, it has also attenuator inside this traveling wave tube. Now let's discuss about the working of this. तो बच्चों पहले तो क्वेश्चन ये है कि हमें ये हेलिक्स स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट की है. व्हाई वी डू नीड दिस हेलिक्स स्ट्रक्चर. तो बच्चों मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो हमारा RF सिग्नल होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दैट विल ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करेगा. मतलब अगर हमें ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाना है तो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए. अगर एक फास्ट जा रहा है और एक स्लोली जा रहा है तो मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा. अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमें एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा. सो इन ऑर्डर टू अचीव इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बीम एंड RF सिग्नल वी आर प्रोवाइडिंग दिस हेलिक्स स्ट्रक्चर. और हेलिक्स स्ट्रक्चर की वजह से ये जो RF सिग्नल है उसकी स्पीड को हम स्लो डाउन करेंगे. क्या करेंगे? उसकी स्पीड को स्लो डाउन. ओके, और इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गन एंड दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो पाएगा, और इंटरेक्शन हो पाएगा तो हमें एम्प्लीफिकेशन मिलेगा. बराबर, करेक्ट. ओके, सो बेसिकली कैथोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब ये कैथोड इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा विच इज स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट. करेक्ट, मतलब ये RF सिग्नल है दैट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्पीड ऑफ लाइट से उसकी स्पीड कम होगी. एंड इट फोकस इनटू द टाइट बीम यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. मतलब उसको हम एक टाइट बीम में यहाँ पे उसको लॉन्च करेंगे. इट विल फोकस इनसाइड द ट्यूब. ओके, एंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इन TWT एम्पलीफायर इज जनरली 10 to 15% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. इतनी कम होती है. ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कैथोड वोल्टेज. बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कैथोड वोल्टेज. ओके, आप कैथोड वोल्टेज कितना भी सेट करो फिर भी आप स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे. सो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो RF सिग्नल है विच इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट उसकी स्पीड को हम हेलिक्स स्ट्रक्चर का यूज करके स्लो डाउन करें. ओके, करेक्ट. सो द RF सिग्नल propagates at the speed of light, so there must be mechanism to slow down the speed that permits interaction between the beam and signal. Very important. ऑप्शन हमारे पास एक ही है. अगर मुझे RF सिग्नल एंड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच में इंटरेक्शन करवाना है तो RF सिग्नल विच इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द हेलिक्स स्ट्रक्चर. So this slowdown is achieved by slow wave structure which is basically helix. Okay, and the slow down RF signal is called slow wave. मतलब जो RF सिग्नल को हमने स्लो डाउन किया है बाय यूज ऑफ हेलिक्स उसको हम बोलेंगे स्लो वेव, और ये स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्लो वेव स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे? स्लो वेव स्ट्रक्चर. ओके, सो वो हेलिक्स के इंट्रोडक्शन से कितनी स्पीड रिड्यूस होगी वो भी इसका भी फॉर्मूला है. So the RF signal travels with the velocity of light multiplied by the ratio of helix pitch to helix circumference. So whenever we introduce the helix, because of this helix structure, the ultimate final velocity of the RF field, which is known as a phase velocity, axial phase velocity, which is represented by Vp, is given as velocity of light, that is Vc, multiplied by हेलिक्स पिच डिवाइडेड बाय सर्क्यूमफरेंस. सर्क्यूमफरेंस दैट इज 2 पाई आर. हाँ ना, एक हेलिक्स होता है उसकी पिच और उसका सर्क्यूमफरेंस. करेक्ट. ओके, सो ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी पिच एंड सर्क्यूमफरेंस का रेशियो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट डिटरमाइंस द एक्सियल फेज वेलोसिटी ऑफ द RF वेव और RF फील्ड, वेयर R is nothing but radius of the helix. Okay, so because of this helix structure we can slow down this RF field so that interaction between this electron beam and RF wave will be taken place, and
during this interaction the RF field will absorb power from the electron beam and will be amplified. Correct? Now what is the role of this attenuator? यहाँ पे जो attenuator मैंने बताया था उसका रोल क्या है? So basically traveling wave tube is high powered amplifier. तो अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे फीडबैक इंट्रोड्यूस हो गया, इस केस में थोड़ा सा भी फीडबैक इंट्रोड्यूस हो गया तो मतलब इट रिजल्ट्स इन द ऑसिलेशन, बिकॉज हमें पता है कि ऑसिलेटर मतलब क्या, पॉजिटिव फीडबैक. तो यहाँ पे ये हाई पावर एम्पलीफायर तो है और उसमें थोड़ा सा भी अगर फीडबैक जैसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे ये ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्पलीफायर की जगह पे ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए ये जो फीडबैक है उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एटेन्यूएटर यूज किया है. सो एटेन्यूएटर आइसोलेट्स इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन टू प्रिवेंट द ऑसिलेशन. करेक्ट? मतलब आउटपुट से इनपुट में अगर फीडबैक इंट्रोड्यूस हो गया तो वो ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑसिलेटर में. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑसिलेशन वी आर प्लेसिंग द एटेन्यूएटर. और एटेन्यूएटर का काम क्या होगा? इट विल आइसोलेट द इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन, सो देयर इज अ नो फीडबैक. Okay, so the velocity of electron beam traveling through the helix induce energy to the RF waves on helix and thus amplification of the signal. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरएक्शन से वो RF सिग्नल को और RF वेव को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी and in this way the signal will be amplified. Okay, so this is how the signal is microwave signal or high frequency signal is amplified in traveling wave tube. Now what are the applications of this traveling wave tube? So traveling wave tube is basically used in the microwave receiver as a low noise RF amplifier. As a amplifier microwave receiver में use कर सकते हैं हम. TWTs are also used in wideband communication link and coaxial cables as a repeater amplifier or intermediate amplifier to amplify the low signal. मतलब जो communication link होती है उसमें हम एज अ रिपीटर एम्पलीफायर और इंटरमीडिएट एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं इनसाइड द लिंक. TWT हैव लॉन्ग ट्यूब लाइफ ड्यू टू विच दे आर यूज एज अ पावर आउटपुट ट्यूब्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी हम यूज करते बिकॉज उसकी लाइफ टाइम ज्यादा है. ओके, सो वी कैन यूज एज अ पावर आउटपुट ट्यूब्स. कंटिन्यूस वेव हाई पावर TWTs traveling wave tubes are used in the troposcatter link because of the large power and large bandwidth to scatter to the large distance. Okay, ये ट्रोपोस्कैटर लिंक्स के बारे में आपने आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे कि व्हाट इज अ ट्रोपोस्कैटर लिंक्स बेसिकली. ओके, एंड TWTs आर यूज इन द हाई पावर पल्स रडार एंड ग्राउंड बेस्ड रडार्स. इन रडार ऑल्सो द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स आर यूज्ड. ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? सो इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड हाउ द एम्प्लीफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द हेलिक्स स्ट्रक्चर और स्लो वेव स्ट्रक्चर. So let's stop here. We'll discuss other aspect of this course in our next video lecture. Thank you very much.